नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही दीपावली एवं काली पूजा के इस शुभ अवसर पर हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम की तरफ से आप सभी को बहुत सारे बधाई तथा अभिनंदन। आइए पहले सुन लेते हैं कि दीपावली एवं काली पूजा के इस शुभ अवसर पर राज्य के वन एवं पर्यावरण तथा मत्स्य एवं आबकारी मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य ने राज्यवासियों के लिए क्या संदेश दिए हैं। दीपावली आमार फाলৰ পৰা আমি অসমবাসী ৰাইজক পৰম শ্ৰদ্ধাভৰে আমাৰ শুভেচ্ছা আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে আপোনালোকৰ জীৱনত পোহৰ লৈ আনক, আপোনালোকৰ জীৱনের সমৃদ্ধি হওক, আপোনালোক ভালে কুশলে থাকক আৰু আমাৰ বিভাগের যিসকল কৰ্মচাৰী ফৰেষ্টেৰ এক্সাইজের ফিশারির যিসকল কর্মচারীয়ে আমি অবিরত কাম করে গৈ আছো, আমার অবিরত যাত্রা আমার রাজ্যর কারণে, আমার রাষ্ট্রর কারণে আমি আমার সমূহ যিসকল আমার বিভাগৰ কর্মকর্তাসকল আছে আপোনালোকক আমি আন্তরিকভাবে আমার দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰো যে আপোনালোকৰ জীৱন আলোকিত হওক আৰু আপোনালোকৰ কৰ্মেৰ জৰিয়তে যাতে আমি এই ৰাজ্যখন, এই ৰাষ্ট্ৰখন উন্নত কৰিব পাৰো তাৰ হকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে আপোনালোক যাতে সঠিকভাৱে আমার কর্মের জড়িয়ে যাতে আমি এই রাজ্যখন, এই সমাজখনের মঙ্গল কৰিব পাৰো। আপোনালোক ভাল থাকক, আপোনালোক সুখে থাকক। कुकड़ाझार के फकीरा बाजार में राज्य के शिक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आज बीटीसी चुनाव को लेकर हग्रामा महिलारी को निशाना बनाते हुए जमकर बरसे। आज उनके द्वारा दिया गया भाषण को हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कुकड़ाझार में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को किस अंदाज से स्वागत किया गया। तो देखा आपने जिस अंदाज में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को स्वागत किया जा रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि बीटीसी इस बार भाजपा के दखल में ही रहेगा। अब आइए सुन लेते हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हग्रामा महिलारी को निशाना बनाते हुए क्या कुछ बोले। যদি মুদি ডাঙৰীয়া ইয়াতে ঘৰ দিছে 2.5 লাখ টকাৰ, বিনা পইচাত কোনেও ঘৰ নাপায়, ভিচিডিচিৰ পেটত টকা ভৰালেহে দুখীয়া মানুহে ঘৰ পায়। মই মিছা কৈছো নেকি? ঘৰ পাবৰ কাৰণে ভিচিডিচিক টকা দিব লাগে নে নাই? আনকি মই শুনিছো যে ইয়াত বৃদ্ধ পেঞ্চন পাবৰ কাৰণেও টকা দিব লাগে। এই টকা কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চাউল পঠিয়াইছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘৰ পঠাইছে। আমাৰ দিছপুৰৰ চৰকাৰে বৃদ্ধ পেঞ্চন পঠাইছে, বিধৱা পেঞ্চন পঠাইছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি পঠোৱা টকা ইয়াতে দুৰ্নীতি হৈছে, দুখীয়া মানুহৰ মুখৰ পৰা সেই টকা কাঢ়ি লোৱা হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই
মিঠা পঠিয়াইছে যে বিটিসি বাসী আপোনালোকে খাব আৰু ইয়াত থকা ভিচিডিচি মেকুৰী বিলাকে পিঠাখন আধা খাই পেলাই আধা টুকুৰা আমাৰ হাতত দিছে। এই বিটিচি লৈ পঠোৱা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কাৰ পেটত গ'ল এই প্ৰশ্ন এইবাৰ ৰাইজে সুধিব। ৰাইজ, আমি বিটিচি লৈকে টকা পঠাও যে 250 টকা অসমত পেঞ্চন পায়, ইয়াতে 50 টকা যোগ কৰি দিব, 300 টকা পাব। চাউল আমি 5 কেজিকৈ পঠাও, ইয়াত 1 কেজি বঢ়াই দিব। বঢ়াই দিয়াটো কথাই নাই, চাউল যিখিনি পায় তাকো ৰেচনৰ দোকানীয়ে কাটি ৰখাৰ পিছতহে আপোনালোকক অকণমান চাউল দিয়ে। আৰু মই অদ্ভুত কথা শুনিছো, বোলে আমি বোলে মাটি বাৰীও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো, আমি বোলে মাটি বাৰীও কিনিব নোৱাৰো। আজি বিটিচিত যিসকল ৰাইজ আছে, যিসকলে বিটিচিত দেউতা মাৰ দিনৰ পৰা ইয়াত বাস কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মাটি বিক্ৰীৰ অধিকাৰ কিয় নাই? তেওঁলোকে মাটি কিয় কিনিব নোৱাৰে? হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘৰৰ মাটি আমি কিনিছো নেকি? মোৰ দেউতা মাৰ মাটি মই কিয় বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিম? মোৰ দেউতা মাৰ মাটি মই কিয় কিনিব নোৱাৰিম? আজি মই আপোনালোকক বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, যিসকল বিটিচিত যুগ যুগ ধৰি ইয়াত বাস কৰিছে, তেওঁলোকে মাটি বাৰী কিনিব খুজিলে SDCয়ে 15 দিনৰ ভিতৰত পাৰমিশন দিবই লাগিব, তাৰ কোনো বিকল্প কথা হ'ব নোৱাৰে। आयुर्वेद भारत की विरासत है। आयुर्वेद की तकनीक को अब पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। यहाँ तक कि आयुर्वेद की जो नीति है उसे कई देश अपने राष्ट्रीय नीति भी बना चुके हैं। साथ ही ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर बनने वाला है, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भारत को चुना है। ये हम सब भारतवासियों के लिए एक गर्व के विषय है। इस बात की जानकारी देते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री समस्त देशवासियों को अभिनंदन ज्ञापन करते हुए और क्या कुछ बोले, आइए देखते हैं। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर टेड्रोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इस रूप में उभरा है, उसी प्रकार पारंपरिक चिकित्सा का यह सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा। ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदियां देने वाला साबित होगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटीग्रेट हो रही है। स्वास्थ्य भी इससे अलग नहीं है। इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पद्धतियों के इंटीग्रेशन, सभी को महत्व देने की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है। दीपावली के बाजार में चाइनीज सामग्रियों की बढ़ोतरी तथा आम लोगों की चाइनीज सामग्रियों की प्रति बढ़ती हुई रुझान से जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं यानी मिट्टी के दिए बनाने वाले जो कारोबारी हैं, बाजार उनको खासा मायूस किया हुआ है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से ये चाइनीज सामग्री की मार, बेचारे झेले तो कितना झेले।
आज हमारा एक प्रतिनिधि दल श्रीकोना के पालपाड़ा नामक गांव में पहुंचे। माना जाता है कि मिट्टी की सामग्री बनाने वाले कलाकार इस गांव में ज्यादा पैमाने पे रहते हैं। हमारे प्रतिनिधि दल ने आज पालपाड़ा में पहुंचकर उन मिट्टी के बर्तन तथा दिए बनाने वाले कलाकारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। दीपावली उपलक्षे बर्तमाने दिया बानानी चलছে। এখানকার যারা বৃহত্তর শ্রীকোনা এলাকার বেশিরভাগ পরিবারেই এই মৃৎশিল্পীর অনেক উপার্জন করে। তো বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ইয়েতে তারা মৃৎশিল্পীরা অনেক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। যে সমস্যাটা হচ্ছে বর্তমানে লকডাউনের ফলেও মৃৎশিল্পীরা অনেক সাহায্য সহযোগিতা যেটা পাওয়ার কথা সরকার তরফ থেকে, সেটা সাহায্য সহযোগিতা কোনো সাহায্য তারা পায় নাই। এবং পাশাপাশি যে সরকারের তরফ থেকে যে তারা একটা খোঁজখবর নেওয়া, মৃৎশিল্পী হিসাবে যে তারা একটা খোঁজখবর নেওয়া, সেক্ষেত্রেও বিরাট গাফিলতি আমরা সরকারের। এবং বর্তমানে দেখা গেছে যে বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন শহর অঞ্চলেও বেশিরভাগ যে দিয়াবাতি এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যগুলোই বেশি গুরুত্ব পাইতেছে এবং যারা মৃৎশিল্পীরা এই জায়গাতে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে সরকারের একটা ভূমিকা থাকা দরকার আমরা মনে করি। এবং মৃৎশিল্পীরা বাঁচানি দরকার। আমরা পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট ভূমিকা পালন। समस्या हो रही है। देखिए और मकान तो खुलता नहीं, हमारा तो सामान बनाता है लेकिन दुकान खुलता नहीं तो हम बेच नहीं पाता है, तो बहुत समस्या तो हो ही रहा है। और दिवाली का टाइम पे तो हम दिवाली तो दीपक बनाए हैं लेकिन वो तो सेल नहीं जा रहा है। वो तो अभी मार्केट डाउन हो गया कोविड-19 के कारण, पैसा वैसा नहीं है लोगों के पास। जो सामान बनाया था वो आधा सेल हुआ, अभी तो आधा रह गया। सरकार के पास तो हम लोग आवेदन किया था कि हम लोगों को कुछ सहायता दिया जाना चाहिए, तो वो लिख के ले गए, लेकिन अभी तक तो हम लोगों को सरकार की तरफ से कुछ पैसा वैसा नहीं मिला। देखिए वो लोग तो सब अपना अपना पसंद से खरीदते हैं, लेकिन हम तो बनाते हैं बेचने के लिए, लेकिन हमारा सामान सेल नहीं हो रहा है। तो इसमें तो और क्या बोलूँ, कुछ थोड़ा बोरा समस्या में तो चल ही जाता है। आर्थिक संकट से तो गुजर ही है। सरकार से मांग करेंगे हम लोगों को कुछ सहायता देना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आप बस बने रहिए हमारे साथ। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले 8 नवंबर को श्रीकोना निवासी माखन मुरा नामक एक व्यक्ति के घर में रात करीबन 3 बजे स्थानीय कुछ दुष्कृतियों ने पेट्रोल बम मारकर उसके घर को जला दिया। माखन मुरा के अनुसार स्थानीय कुछ लोगों के साथ उन लोगों की एक जमीन विवाद चल रहा है। माखन मुरा के पिता के रहते हुए ये विवाद का आरंभ हुआ था, लेकिन अब माखन मुरा के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दुष्कृतियों ने उनको परेशान करना अभी तक नहीं छोड़ा। इस संदर्भ में माखन मुरा ने सिलचर सदर थाने में एक मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने पर दोषियों को उचित शास्ति दिलवाने के लिए आज माखन मुरा के पूरे परिवार पहुंचा कछार जिला उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। आइए सुनते हैं। আমার নামটা মাখন মুরা লেস মুরারি, এদের দিকে শ্রীকোনা দামচরা 8/11 ভোর রবিবার 3 ঘটিকা হইতে পেট্রোল বোমা দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে আমাদেরকে ইচ্ছানাচ্ছ করেছে। কারা করছে এটা? এইগুলো করেছে নাম হচ্ছে কৃষ্ণ দে, অজিত দাস, অমৃত দাস, বাপি দাস এবং রাজু দাস। থানাকে ফোন করা হয়েছে, থানা গেছে, ফায়ার ব্রিগেড গেছে, আগুন নিভিয়েছে ফায়ার ব্রিগেডে।
নেওয়ার পরে তারা কেস করলাম, পরের দিন কেস করার পথে এখনও থানা পুলিশে কোনো অ্যাকশন নেই। কোন থানা? আমাদের শিলচর সদর থানা কেস দিয়েছি, এখান থেকে কোনো ইয়ে করে নেই। 3 বছর আগে বাবার সাথে চিটিংবাজি করে জায়গা জমি নিয়ে কিছু ভেজাল নিয়ে তারা ইয়ে করেছে, এবং তারা বাবা তো মারা গিয়েছে, বাবা তো নেই। বাবা না থাকা সত্ত্বে উনিরা আসে জায়গা দখল করতে খুঁজছে, আমরা দেইনি। আমরা 4 ভাই, আমরা 4 ভাইয়ের জায়গা দখল করতে দেইনি, সেই জন্য তারা এই কাজটা করেছে। ঘরের বাসাতে এসে হুমকি দিয়েছে, এখন 1 দিন 2 দিন 3 দিন হুমকি দিয়েছে, সেই জন্য কাজটা আমাদের সন্দেহ হচ্ছে তারাই করেছে। ঘর থেকে সব ঘর ছেড়ে দাও, আমরা এই জায়গা জমি কিনে নিয়েছি, তোমাদের এখানে থাকার কোনো পত্র নাই, এখানে কোনো কিছু নাই, এইসব বলে আমাদেরকে, আমরা তো যাই নেই, ঘর ছেড়ে যাই না। উনিরা এই পেট্রোল বোমা দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে আমার মিছে করে। কোন সময় করছে এটা 8/11 রবিবার ভোর 3 ঘটিকে সব ঘুমে। এরপরে তো উনিরা তো আমরা কোনো যান বাঁচালাম, আর যান বাঁচানোর পরে রয়েছে তো থানা ফায়ার ব্রিগেড সব দিয়েছে, যাওয়ার পরে তো আবার 8 তারিখে থানার থেকে কোনো অ্যাকশন নিয়েছেন? না, থানা পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেয়নি। সেই জন্য আমরা আজকে এসেছি ডিসি ম্যাডামের কাছে। আমাদের একটা কাগজ ছিল, সেই কাগজটা দেওয়ার জন্য এসেছি। এখন এখান থেকে গিয়ে আমরা এসপি সাহেবের কাছে যাব, এই কাগজটা এখানে পৌঁছে নিয়ে যাবে। কি আমাদের ঘর জ্বলিয়েছে, সেই সব কিছু জ্বলিয়েছে, তার জন্য তো একটু শাস্তির জন্য আমরা একটু চাইছি ভবিষ্যতে যেমন এইগুলা মানুষ এরকম অপরাধ আমাকে করেছে, ভবিষ্যতে আর কেউ করবে না, সেটাই চাইছি। दीपावली के ये पर्व उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि माना जाता है कि श्री रामचंद्र जब 14 साल की वनवास काटकर अपने गांव यानी अयोध्या लौटे थे, तो उनकी आने की खुशी में पूरे नगर को रोशनमय किया गया था, पूरे नगर में दिए जलाए गए थे। तब से ही लोग दीपावली पर्व मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर पे अयोध्या में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से इस पर्व के बारे में तथा रामलला के बनने वाले मंदिर के विषय में उन्होंने क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। और मुझे लगता है कि राम राज्य की आदर्श अवधारणा को चरितार्थ करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान को क्रियान्वित करने का इससे अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है, जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो, उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई, और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है
जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। नॉर्थ ईस्ट वॉच टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।